Hello students, welcome to lecture number 3 of this nuclear physics course. In this lecture we are going to discuss basic properties of atomic nuclei. The first basic property, that is charge. So charge on a nucleus is equal to plus Ze, where Z represents the number of protons present inside the nucleus. Z is the atomic number, and atomic number is always equal to number of protons present inside the nucleus. And E, that is plus E, this is the charge on a proton. न्यूक्लियस कंटेंट्स, देखिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होंगे और न्यूट्रॉन्स भी होंगे, बट न्यूट्रॉन्स पे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, दे आर चार्जलेस, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. प्रोटॉन्स पे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इक्वल टू प्लस ई. So total charge of the nucleus is only due to protons, and that is equal to number of protons into charge of one proton, which is equal to plus Ze. Okay, and the next property, that is the mass of a nucleus. Mass of a nucleus is equal to mass of protons plus mass of neutrons. If mp, this mp denotes mass of a proton, mass of a proton, and this mn, it denotes mass of neutron, it denotes mass of neutron. So total mass of a nucleus would be equal to total mass of protons plus total mass of neutrons present inside the nucleus. And most of the mass of the atoms, approximately 99.99% of the mass of the atom presents inside the nucleus, because electrons are very light as compared to protons and neutrons. And nuclear mass, we may determine nuclear mass by the measurement of E by m ratio. E by m, that is charge to mass ratio of nucleus, and also with the help of nuclear reaction energies, because energy and mass are related by the equation E is equal to mc square. This is mass, this is called mass energy equivalence. So these are quite basic properties. That is, first one is the charge of the nucleus. Charge of nucleus is equal to the total charge of all the protons present in the nucleus, and mass of the nucleus is total mass of all the nucleons. Nucleons, it means both protons and neutrons. So total mass of protons plus total mass of neutrons is equal to mass of the nucleus. And nuclear mass, you may determine nuclear mass by calculating, by measuring the charge to mass ratio, and also with the help of nuclear reaction by using the mass energy equivalence, that is E is equal to mc square. And it is always it always comes out to be very close to an integer a. कोई भी आपका, फॉर एग्जांपल आप कार्बन का एग्जांपल लें, कार्बन का एग्जांपल 12C6. 12 क्या है यहाँ पे, मास नंबर. 12 इज द मास नंबर. इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन में, 12 हैं. इनफैक्ट कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो कार्बन का जो मास है वो एटॉमिक मास यूनिट्स में, जब एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करेंगे तो इट वुड बी 12U. सिमिलरली इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, if I take the example of oxygen, that is 16O8, then mass of the oxygen nucleus, it would be approximately equal to 16 atomic mass unit, or you may write 16U. It is approximately equal to 16U. That's why it is written that the nuclear mass always comes out to be very close to an integer a, और a क्या है, mass number of the nucleus, and it is when expressed in terms of atomic mass unit. Now the third property, that is the size of the nucleus. In general, the atomic nuclei are considered to be spherical in shape. Generally जो shape है वो spherical है. हालांकि हम subsequent lectures में देखेंगे कि there are deformations also. The nuclei are not exactly spherical in shape, but generally we can consider the nuclei
to be in spherical shape, and the distribution of positive charge, that is the charge of all the protons, it may also be considered uniform. तो इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस को हम जनरली स्फीयर की शेप में मान सकते हैं, और जो उसका चार्ज है, चार्ज कौन सा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, उसको भी वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चार्ज भी और मास भी दोनों न्यूक्लियस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें पता चलता है कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस की, ज़्यादा अगर न्यूक्लियॉन्स हैं, जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम होती है न्यूक्लियस की। दैट इज़ वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ये कार्बन का न्यूक्लियस है और ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। तो कार्बन में न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 12, ऑक्सीजन में कितने हैं, 16। तो वॉल्यूम किसकी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की वॉल्यूम ज़्यादा होगी। क्यों होगी, बिकॉज ए दैट इज़ अ मास नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। सो एक्सपेरिमेंटल डेटा suggests that volume of the nucleus is proportional to number of nucleons। जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम होगी एक न्यूक्लियस की। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो वॉल्यूम इज गिवन बाय, देखिए हमने न्यूक्लियस को जनरली क्या कंसिडर किया है, स्फेरिकल शेप में। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। r is the radius of nucleus and it is found to be proportional to a, that is the mass number. So from here, by using simple mathematics, we can also write r cube is proportional to a, because 4/3 pi, this is a constant, and r is equal to a raised to, r is proportional to cube root of a, and we can write r is equal to r naught a raised to power 1/3. r naught is the constant of proportionality and its value is equal to 1.2 Fermi. It is called nuclear radius parameter. देखिए जो वॉल्यूम है, एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट करता है कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मीनिंग मास नंबर पे डिपेंड करता है। अब वॉल्यूम एक स्फीयर की क्यों, क्योंकि हमने न्यूक्लियस की जनरल जो शेप है उसको स्फीयर माना है। वी कैन अज्यूम दैट जनरली न्यूक्लियस इज इन ए स्फेरिकल शेप। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, a के। यूजिंग द सिंपल मैथमेटिकल वी कैन come on this expression that r, that is the radius of nucleus, is equal to r naught a raised to power 1/3, and this r naught is a constant which is called nuclear radius parameter, and its value is nearly equal to 1.2 Fermi. Remember, 1 Fermi is equal to 10 raised to power minus 15 meter. Okay, we can also say Fermi as femtometer. Now let's take an example. Let's calculate the radius of carbon 12. Let's calculate the radius of carbon 12 using this formula. Carbon 12, it means it means mass number is 12. So r is equal to r naught. We have to simply put the value of a in this formula. We have to simply put the value, and a is equal to 12. So by putting the value and after simple mathematical calculation, we come on to this result that radius of a carbon 12 nucleus is 2.8 Fermi. That is 2.8 into 10 raised to power minus 15 meter. Next we can take the example of uranium 235. In uranium 235, again we have to use the same formula, that r is equal to r naught a raised to power 1/3. Here the value r naught is constant, its value is 1.2 Fermi. Its value is 1.2 Fermi, and putting the value of a is 235. A is 235. So putting the value of a here, we get the value 7.4 Fermi as the radius of uranium 235 nucleus. अगर यूरेनियम आपके पास 238 है तो उसका जो रेडियस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिकॉज देन वी विल टेक 238 instead of 235. So from here we can conclude that
larger the number of nucleons, larger will be the volume of nucleus. Okay, and till now we are discussing about the nuclear mass distribution कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. जो रेडियस की बात कर रहे हैं, मास के रेडियस की बात करें, न्यूक्लियस में जो चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स है, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्फेरिकल शेप में है. सो इंस्टेड ऑफ mass radius, we can also discuss about charge radius. We may talk about nuclear charge distribution, that is nuclear charge distribution. Since nuclear charge किस पे डिपेंड करेगा? atomic number Z is also found to be proportional. Z is also found to be proportional to A. Like volume क्या था? जब mass distribution, radius of nuclear mass distribution, in this case experimental data suggests that volume is proportional to mass number, but nuclear charge, that is atomic, which depends on atomic number, that is Z is also found to be proportional to A. तो आप चार्ज रेडियस की बात करें या मास रेडियस की बात करें, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, बिकॉज देर आर स्ट्रोंग. इसका रीजन ये है कि देर आर स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. चार्ज रेडियस एंड मास रेडियस of the nucleus may be expected to be very nearly same because of strong attractive forces that are nuclear forces between the nucleons inside the nucleus. So this is all about the size of nucleus. Let's come on to the next page. Now we will talk about density. Density of a nucleus is found to be of the order of 10 raised to power 17. और एक बात और है, जो डेंसिटी है किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस आप ले लें तो उसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी. दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज्ड टू पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसको हम जनरल जो डेरिवेशन है उससे समझने की कोशिश करते हैं. देखिए डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. एक न्यूक्लियस का मास कितना होगा? अगर हम m मान के चलें, मास ऑफ ए न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन विच इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, जिसको हमने m मान लिया, और a टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. सो दिस इज टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस and this is the volume of the nucleus. Mass upon volume will give us density. So putting the values here, and a in denominator and a is also in न्यूमिनेटर. सो a से a जो है आपका कट जाएगा, और जो रिमेनिंग आपकी टर्म है दिस इज m अपॉन 4/3 पाई आर नॉट. ये जो टर्म है m मास ऑफ न्यूक्लियन कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा. दिस इज a कांस्टेंट 4/3 pi, this is a constant. r naught, this is a constant. So this value density remains constant. It does not depend on a पे डिपेंड नहीं करती है, मास नंबर या एटॉमिक नंबर पे डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है. एंड इट्स वैल्यू बाय when we put the values of all these constant, we get the density is equal to 10 raised to power 17 kilogram per meter cube, and this is a huge value. Such type of density found in the certain stars known as white dwarfs, because they are composed of atoms where electron shells have collapsed owing to enormous pressure and temperature. The densities of such stars approach that of the pure nuclear matter. Normally जो स्पेस है, जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दिया जाए तो सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा. और ऐसी सिचुएशन वाइट ड्वार्फ्स में जो देर आर सर्टेन स्टार, दीज आर नोन एज वाइट ड्वार्फ्स. देर इज उनमें क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वजह से सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स डी अटैच हो जाते हैं और जो बचता है वो ओनली न्यूक्लियर मैटर. तो जो वाइट ड्वार्फ्स की जो डेंसिटी है इट इज नियरली कंपेरेबल टू द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. Let's come on to the next page. Now we will do some numericals regarding this.
So first is the find the density of carbon 12 nucleus. It is very simple numerical. Firstly we have to find out the radius, जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है कितना रेडियस आएगा. सिंपली इस फॉर्मूले में आपको ए की वैल्यू पुट करनी है. रेडियस विल बी 2.8 फर्मी. नाउ mass of a nucleon, this is mass of a proton or mass of neutron, approximately same रहेगा. This and its value is 1.6 into 10 raised to power minus 17. A, that is the mass number for carbon is 12, and R, thus we have calculated, it is 2.8 Fermi. So putting all these values, we will get the value of density. It comes out of the again of the order of 10 raised to power 17 kilogram per meter cube. So जो हमने लास्ट में पेज पे डिस्कस किया था कि एक किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी लोगे आप, उसकी जो डेंसिटी का ऑर्डर आएगा इट वुड बी ऑफ द 10 रेज़ टू पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ये थोड़ा सा ध्यान से करना है. इन न्यूक्लियस AXZ मीन्स A मास नंबर, X केमिकल सिंबल एंड Z इज द एटॉमिक नंबर. एक न्यूक्लियस है जो दो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है. एक Y1 है, एक Y2 है. Y1 का मास नंबर A1 है और एटॉमिक नंबर Z1 है. Y2 का मास नंबर A2 है, एटॉमिक नंबर Z2 है. तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द फ्रेगमेंट्स Y1 और Y2 की फ्रेगमेंट्स. जैसे ही X ब्रेक होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं एक बार. आपका स्टार्टिंग में क्या था, X ब्रेक हो गया दो पार्ट्स में, एक Y1 और एक Y2, दैट इज Y1 एंड दैट इज Y2. तो क्वेश्चन ये है, जस्ट आफ्टर स्प्लिटिंग इनका सेपरेशन कितना होगा. सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स, तो सेंटर्स के बीच में सेपरेशन, दिस रेडियस ऑफ Y1 प्लस रेडियस ऑफ, दैट इज R1 इज द रेडियस ऑफ Y1, R2 इज द रेडियस ऑफ Y2. तो R1 प्लस R2 वुड बी इक्वल टू सेपरेशन जस्ट आफ्टर स्प्लिटिंग. दैट देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द सेपरेशन बिटवीन द फ्रेगमेंट्स at the time of splitting is equal to the sum of their nuclear radii. देखिए दोबारा से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं. आपके पास कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस है और जिसका केमिकल सिंबल है X, वो स्प्लिट हो जाता है दो न्यूक्लियाई में. एक का केमिकल सिंबल है Y1 और दूसरे का केमिकल सिंबल है Y2. ठीक है, Y1 का रेडियस है R1 और Y2 का रेडियस है R2. तो इनकी सेपरेशन जस्ट आफ्टर स्प्लिटिंग कितना होगा. सेपरेशन मीन्स सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स, क्योंकि हम स्फेरिकल शेप अज्यूम कर रहे हैं. तो एक सेंटर यहाँ है, दूसरा सेंटर यहाँ पे है. एक सेंटर यहाँ पे और दूसरा सेंटर यहाँ पे. तो सेपरेशन कितना हुआ, दिस इज द सेपरेशन, दैट इज R1 प्लस R2, रेडियस ऑफ Y1 प्लस रेडियस ऑफ Y2, दैट इज R2. सो रेडियस ऑफ Y1 का रेडियस कितना होगा, वही फॉर्मूला सेम दोबारा से, R0 A1, क्योंकि A1 क्या है, Y1 का मास नंबर. R2 दैट इज R0 इंटू A2 रेज टू पावर 1/3. A2 क्या है, Y2 का मास नंबर. तो दोनों का जो रेडियस है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, एंड एडिंग बोथ दिस रेडियस वी गेट द सेपरेशन एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग. R0 A1 रेज टू पावर 1/3 एंड A2 रेज टू पावर 1/3. तो इसमें ये जनरल न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था. अब हम वैल्यूज़ लेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लेंगे, उसकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी, अ न्यूक्लियस विद ए मास नंबर 235 स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई, दैट इज, और उनका मास नंबर का रेशियो कितना है, 3:2. ठीक है, तो देखिए उनके बीच में फिर हमें सेपरेशन निकालना है, सेपरेशन बिटवीन द फ्रेगमेंट्स एट द मोमेंट ऑफ स्प्लिटिंग. देखिए जो मास नंबर आपका 235 है, 235 है, ये आपका 235 है. दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा, एक बड़ा होगा और एक आपका छोटा फ्रेगमेंट, और इनका 3:2, ये है मास नंबर का रेशियो. तो एक का मास नंबर कितना होगा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन शोज दैट मास नंबर ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट विल बी 141 एंड स्मॉलर 94. तो 141 जब मास नंबर है तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा, 5.2 R0. R0
इंटू ए रेज टू पावर 1/3। ए की वैल्यू कितनी है लार्जर फ्रेगमेंट के लिए 141। सिमिलरली स्मॉलर फ्रेगमेंट 94 और हम 94 की वैल्यू पुट करेंगे तो R2 की वैल्यू 4.5 R0। समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है सेपरेशन एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग। तो एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग मीन्स जस्ट स्प्लिट हुआ उसके बाद कितना सेपरेशन होगा दोनों के रेडियस का सम। सो R1 plus R2 and simple mathematical calculation will give this result that R1 plus R2 is 9.7 R0। R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी और इन टर्म्स ऑफ फर्मी इट कम्स आउट टू बी 11.7 फर्मी अप्रोक्सीमेटली। एक बार फिर से इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 235 है। वो न्यूक्लियस दो फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है और उनके मास नंबर का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो 3:2 है तो यहाँ से हमें दो जो फ्रेगमेंट्स हैं उनका मास नंबर पता चल गया। एक का मास नंबर 144, दूसरे का मास नंबर 94। एक का मास नंबर 141 एंड सेकेंड का मास नंबर 94। अगर मास नंबर आपको पता है तो रेडियस हम पता लगा सकते हैं है तो दोनों को एडिशन करेंगे तो उनका सेपरेशन हम पता कर सकते हैं जस्ट एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग। सो इट विल कम आउट टू बी 11.7 फर्मी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू।